Good morning, first year commerce. This is the fifth part of the lecture of the subject of the money banking and the chapters barter system and evolution of money. This is the fourth part of the lecture. I think you are clearly very much affiliated with the subject and with this chapter, and what is the barter system and what were the merit and demerit, what are the merit and demerit of the barter system. And in the last lecture we discussed the evolution of money, and we completed the money from the wild animal to the mud, the things which are mud, went by the mud and stones. हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने जो है जानवरों का और तमाम चीजों का उपयोग किया. लास्ट में जो है आते आते जब हम लोगों ने देखा मनी इन द क्राफ्ट स्टेज, द पीपल वेर यूजिंग द idols of mud and stones, and later when these things were also creating the problem, and through the passage of time we are getting the new things, new items, metal. After extracting the beneath of the earth, we were getting the metals, and metal which bear the longevity. ये जल्दी खराब नहीं हो सकता था, बहुत दिन तक चलने वाला था. ये एक अद्भुत चीज मिला लोगों को, and people were using the metal. Now we are entering in the metal stage. The second point is the metallic money stage. Due to the passage of time, the experience of the people were not very good about the commodity which they were treating as a medium of exchange, because like the animals, the flesh of animals जो ज़्यादा दिन यूज नहीं हो सकता था, बदबू मारने लगता था, खराब हो जाता था. Animals का bone, these were also facing the same problem. So when we got the human being to develop, at that time they got after extracting the beneath of the earth, they got the metals, then things which resulted a very longevity after using the metal as a medium of exchange. इसमें दिया है मेटेरियल जो हम लाइन से बोलते हैं, the search of the discovery of any such thing was started to be used as money, which was the stable था, available था, accepted by the all. The metallic money came into the exchange in place of the commodity many after these results. First of all, पहले आयरन लोहा आया, लीड आया, कॉपर आयरन ब्रास metal were used in the form of money. After the valuable money like gold, अब इसके बाद जो है गोल्ड आया, सिल्वर आया. आपको ये अलग से चैप्टर में मिलेगा गोल्ड एंड सिल्वर का एक अलग कैसे कैसे चला. ये बहुत दिनों तक ये था, पूरे वर्ल्ड में था गोल्ड स्टैंडर्ड एंड सिल्वर स्टैंडर्ड. बट अभी 200, 300, 250 साल पहले तक ये था. 200 साल खत्म हुआ. इसको हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, व्हाई द गोल्ड स्टैंडर्ड वेयर वेनिस्ड. ठीक है, इसमें था इट वाज फेल्ड द क्वालिटी ऑफ रेयरिटी. चूंकि गोल्ड एंड सिल्वर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, गोल्ड एंड सिल्वर जो है एक रेयर मात्रा में थी. अब जमीन से निकालना, कोई बनाना तो है नहीं, तो वहां पर वो दिक्कत क्रिएट करने लगा. ठीक है ना. It was felt the quality of the rarity was not found in the other metal except gold and silver. में एक बहुत अच्छी चीज थी कि आप ये कॉस्टली भी था, वैल्यूबल था, लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे. बाकी चीजें उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रही थी जितनी मात्रा में गोल्ड उस समय. लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ने लगे, गोल्ड एक ये तो था कि गोल्ड एंड सिल्वर काफी दिनों तक चला. The use of other metal gradually decreased, and the coin of gold and silver had taken in place of main money. In the beginning, the small pieces and rings these metal were used in the form of money. अब ये मनी में आएगा. लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि again the civilization were improving, we are growing the civilization, the people were growing, new things were discovered, and it was very difficult, became very difficult for the people to carry the gold.
with the development of the money, development of the economy, it was not possible to fulfill the need of the economy through the golden medal due to the cost, due to the so many reasons we will discuss in the gold standard and silver standard chapter in detail. At that time it was felt the new things to start as the money, that was the paper money. China was the first country जिसने पेपर मनी को लिया. ठीक है, हमारे देश में भी 1806 में जो है पेपर मनी आया. पेपर मनी से जो है कई प्रॉब्लम दूर हो गए. एक तो हम कहीं से आसानी से ले भी जा सकते थे और उसको यूज कर सकते थे. अलग अलग डिनोमिनेशन के पेपर मनी आया उसको, और ये काफी दिनों तक चला. फिर अगेन थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम पेपर मनी इज स्टिल इन द इकोनॉमी, इन द अनदर, उसका रूप बदलता चला जा रहा है. लेकिन आज स्टिल द पेपर मनी इज, वी आर यूजिंग द पेपर मनी इन लार्ज स्केल बिकॉज इट हैज सो मेनी advantages, like that we can carry it anywhere, in any form हम ले जा सकते थे. अब जब डेवलपमेंट हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में रिस्की हो जाता था पेपर मनी, उसका रूप लिया द क्रेडिट मनी, दैट इज द क्रेडिट मनी में जिसमें आपका आता है जो हम लोग जिसको अनदर रूप में बोलते हैं ऑप्शनल मनी, जिसमें चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, ये पेपर मनी को रिप्रेजेंट करने लगा. आज हम लोग बड़े अमाउंट के लिए क्रेडिट मनी और पेपर मनी को हम लोग यूज करने लगे. अब देखिए पेपर मनी से हम लोग इंटर करके किसमें, आपके ये से क्या कहते हैं क्रेडिट मनी. और क्रेडिट मनी अभी चल ही रहा था. अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमी में आ रहा है और दैट इज द कैशलेस इकोनॉमी. सो वी आर यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्लास्टिक मनी. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप जाते हैं, स्वैप करते हैं, पैसा ले लेते हैं. आप किसी भी दुकान पर जाते हैं, कार्ड देते हैं और मनी आपके उस दुकानदार के आप सामान भी ट्रांसफर हो जाता है. देयर आर नो कैश ट्रांजेक्शन एट ऑल. सो वेरी इजली विदाउट रिस्क हम लोग आज ट्रांसफर कर सकते हैं. दिस इज द प्लास्टिक मनी एरा. आज के समय में मेरे पास पेपर मनी भी है, लेकिन पेपर मनी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब छोटा अमाउंट हो पेपर मनी यूज कीजिए, बड़े अमाउंट के लिए आप क्रेडिट मनी हो गया. और अब सबसे ऊपर जो चलने लगा है दैट इज द प्लास्टिक मनी, जिसको हम लोग डेबिट, एटीएम कार्ड और ये सब जो प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आता है. जो अकाउंट टू अकाउंट डेबिट कार्ड है, अकाउंट टू क्रेडिट कार्ड है, तो अकाउंट टू अकाउंट पैसा हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रांसफर करा देते हैं. सो आज मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ. फॉर्म चेंज हो रहा है, रूप बदल रहा है, लेकिन नेवर द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मनी इज never be ceased. Its existence, its importance in our day-to-day life for the society and for the whole nation and for the whole world. We cannot deny the importance of money. It is said कि money अगर एक तरफ अगर आग का आविष्कार हुआ, बिजली का आविष्कार हुआ जिसने मानव सभ्यता को बदला है, तो मनी ने भी मानव सभ्यता को शायद इनसे कम बदलाव नहीं किया है. इट इज द टोटल रिवोल्यूशनरी स्टेप बाय द ह्यूमन बीइंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. मनी हैज बिकम विद द न्यू फॉर्म ए पिलर ऑफ द इकोनॉमी. आज हम सब के इर्द गिर्द मनी घूम रहा है, चाहे उसका रूप कुछ भी हो. ये था हम लोगों ने जो अब तक ये पढ़ा कि मनी जो है किन किन रूपों में हमारे पास यहाँ तक चला आया है. ठीक है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा. और आज भी जो है एक अलग रूप में मनी चल भी रहा है, एक लेकिन छोटे छोटे रूप में बार्टर सिस्टम भी है, जिसको हम लोग आगे के चैप्टरों में देखेंगे. इसमें जो हम आगे जो पॉइंट उठाने वाले हैं वो है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द पार्टी सिस्टम बाय मनी. इसमें पॉइंट होगा. इसमें हैंसन का एक पॉइंट है, राइटली सेड दैट द ओरिजिन ऑफ मनी हैज टेकन प्लेस ड्यू टू द डिफिकल्टी
ऑकरिंग फ्रॉम द वाटर सिस्टम। ये हमने बोला भी कि मनी का जो उदय हुआ है वाटर सिस्टम की प्रॉब्लम जो आया, दिक्कत है, उसके वजह से हुआ। और वो द फॉलोइंग फैक्ट क्लैरिफाई, ये फॉलोइंग फैक्ट बता रहा है कि मनी ने कौन कौन सी चीज वाटर सिस्टम की दिक्कतों से दूर किया। द फर्स्ट पॉइंट, नो नीड फॉर द डबल। आज आपके पास पैसा है, आपको जो सामान लेने जाना है जाइए सामान लीजिए, आपको दुकानदार से पूछने की कतई जरूरत नहीं है कि भाई साहब आपको क्या जरूरत है। आपको पैसा लेना है, फिर वही पैसा लेकर दुकानदार अपनी आवश्यकता करेगा। देयर इज ए नो नीड ऑफ द डबल कोइंसिडेंस। वाटर सिस्टम हमने बोला भी था, इट वॉज नॉट, वाटर सिस्टम वॉज नॉट ओनली द exchange of the goods, but it was also the exchange of the need. But in that money removed this problem. You should not to ask to any person, and we should not exchange the commodity to commodity, need to need. If we are having the money, we can go and purchase the thing without asking the need of the other side of the person. Second point है, money can be used as standard of money. आज हम कोई भी सामान लेते हैं, पूछते भाई साहब क्या रेट है। हम ये नहीं कहते भाई साहब 1 किलो का सामान और 1 किलो का ये क्या एक्सचेंज में हो सकता है, नहीं। हम मनी के रूप में पूछते हैं, बताता है 10 रुपया किलो है, 50 रुपया किलो है, सोना है तो 45,000 है, 50,000 रुपये भरी है, हम उसको मनी के रूप में ही लेते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या दूर हो गया, हमको अदर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड द थर्ड इज ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन एंड सब डिवीजन। आज सामान है, कोई भी सामान है, आप पैसा है, पाव भर भी ले सकते हो, 250 ग्राम, आधा किलो, 100 ग्राम, जैसा आपकी जरूरत है आप ले सकते हो। वहां पर उसको बांटने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा था, वाटर सिस्टम में बहुत दिक्कत था। आपके जैसे आपको एक बकरी चाहिए तो आप जाके बकरी ले लो, आपको भैंसा बेचना है तो आप भैंसा बेच दीजिए, बफेलो बेच दीजिए, लेकिन उसमें एक्सचेंज नहीं करना है कि आधा भैंसा कैसे दे क्योंकि उसके पास एक बकरी है, क्योंकि आपका मानना है कि 1 बफेलो इज इक्वल टू 2 गोट। यहाँ पर किसी प्रकार का डिवीजन सब डिवीजन की जरूरत नहीं। इफ यू आर हैविंग द मनी, यू कैन इजिली परचेज द थिंग इन एनी क्वांटिटी। द फर्स्ट वन इज मनी कैन बी यूज द स्टोर ऑफ वैल्यू। यू कैन कीप, आप चावल को, दाल को, ये सब क्वांटिटी को ज्यादा दिन रख नहीं सकते थे। आपको जो है उसको आप खराब हो सकता था, यू कैन नॉट स्टोर दैट, बट मनी कैन बी स्टोर। आगे के चैप्टर आप जब सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोग मनी का पढ़ेंगे डिफिनेशन, दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम बताएंगे कि मनी आप स्टोर करते हो, सेव भी कर सकते हो, नॉट इनटू द हाउस, बट वी आल्सो सेव द मनी into the bank, where we can save the not the money but also we can save the store of value of the money. How? That we'll discuss in that chapter. Now that is the most important thing regarding the this subject. The fourth way storing capacity आप रख सकते हो, इसको मैंने अभी बताया। स्पेस की ज्यादा जरूरत नहीं है, आसाम से निश्चित आप रख सकते हो। कैपेसिटी ऑफ द वैल्यू ट्रांसफर, आपको कोई भी सामान लेना है, आप जमीन यहाँ पर है, आप यहाँ पर जमीन बेचिए और दिल्ली बॉम्बे कहीं भी खरीदना खरीद लीजिए। वाटर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। तो मनी, जो मैंने अभी बताया, अद्भुत चीज है जो वाटर सिस्टम की सारी समस्याओं को दूर किया, और आज मनी उस अवस्था में पहुंच चुका है जो हमारे इर्द गिर्द एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो है हमारा ये लेक्चर इस पर पूरा होता है। अब एक नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग प्लेस ऑफ द वाटर इन मॉडर्न एज एंड इज वाटर पॉसिबल इन द मॉडर्न एज, ये इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस chapter, the water regulation of money, and today class with this point is over, and next class we will discuss above the point कि क्या वाटर सिस्टम इस समय संभव है, इसको डिस्कस करेंगे और कंक्लूडिंग लेक्चर होगा हमारा। और अगेन हमारे ख्याल से जितना चीज इसमें आज हमने पढ़ाया होगा आपको समझ में आ गया होगा, और तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए आप पढ़ते रहिएगा, और आगे की क्लास में हम बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है इसका, और उसके साथ ही तब तक के लिए थैंक यू।